Salutation to the God. According English language, salutation to the God. According Sanskrit, Om Namah Shivaya. According Sanskrit, Om Namah Shivaya. According Hindi language, अभिवादन परमात्मा को. अभिवादन परमात्मा. According Nepali, परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत. परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत. From 4 languages: English, Sanskrit, Hindi, and Nepali. God means mainly 3 features, mainly 3 elements. God means one, immortal, forever, always, because pure consciousness. God means pure consciousness, pure intelligent. That is immortal, which we are. Which we are. So, among 3, first, immortal, but physical world and body mortal, not sure of even 1 hour, but always sure of pure consciousness, pure intelligence. That is pure knowledge, pure self-knowledge, pure self-knowledge. Self means spiritual, not physical. Self means here, not physical, but only spiritual. So among 3, one immortal, and second, self-enlightened, self-light, self-enlightened, too much light than physical sun, more than light than physical sun, because the name of spiritual sun is, according Sanskrit, Surya Narayana. Surya Narayana, according Sanskrit. The actual position of physical sun, where is too much light, more than the light of the day, more than light of the physical sun. So, so much power within a spiritual sun. That means, according Sanskrit, Surya Narayana. So, God means among 3, second, self-enlightened, always enlightened, which is immortal. That is our actual nature. Our actual nature is not our physical body. If we realize the physical body always, then our great mistake, blunder mistake, because we means spiritual,
actually spiritual, not physically, because physically not always true. For very short time, maybe 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 50 years, 100 years, that much. About 100 years, not more than that, according physical. So, our concern, our immortal concern, according immortal. And the third among three, that is full of pleasure, always pleasure, always full of pleasure, permanent pleasure. This is the main three features of the God: immortal, self-lighted, and full of pleasure, always, always. Now, according date now, 2025, New Year, the first month, January of New Year. It is 14 today. The date Tuesday, according Hinduism, Magh Sankranti, Maghe Sankranti, Magh Krishna Paksha Pratipada Tithi, Mangalbar. According to Nepali, Bikram Samvat 2081, month Magh, Ek Gate, Mangalbar. This presenting from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Nepal Parasi city, Palpatansan city, Uttal city, and presenting by President of Immortal Pleasant Center, according to Nepali, Akhanda Sukha Kendra. Now we are telling and listening about our immortal nature, which always remains, which always remains, which is immortal, which is self-lighted, and which is full of pleasure, always, continuous, non-stop, always, full of pleasure, always. So the name of God, according Sanskrit, Shiva, Shiva, Mahadeva, Mahadeva. According Hindi, the meaning of Mahadeva, देवता का भी देवता, देवता का भी देवता है महादेव, वो है शिव पशुपतिनाथ. Om Namah Shivaya. Now I describe in Hindi language and Nepali language. अभिवादन परमात्मा को पुनः. परमात्मा का विशेषता मुख्य तीन है. एक, हरदम, हरदम पाया जाए, हरदम पा सकते हैं, क्योंकि हरदम रहता है, एक सेकंड भी इसका अभाव नहीं है, जिसको सत कहा जाता है. और दूसरा, ये अपने आप से प्रकाशित है, अपने आप से प्रकाशित है. शिव, महादेव, परमात्मा, इसी को परमात्मा कहा जाता है. परमात्मा का मतलब आनंद ही आनंद.
केवल आनंद पाने के लिए परमात्मा की तरह रहना होगा। केवल परमानंद रूप से हरदम लगातार रहना केवल संभव है शिव महादेव के अनुसार रहा जाए। शिव महादेव, देवता का भी देवता महादेव, वो शिव है, वो लॉर्ड। इन इंग्लिश लॉर्ड मीन्स गॉड, सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए परमात्मा को स्वभाव जानना होगा। परमात्मा है, हरदम रहता है। परमात्मा अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है। जो आकाश का सूर्य है वो तो सृष्टि में पैदा हुआ है, प्रलय में खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य को भी प्रकाशक, सूर्य को भी जिससे प्रकाश किया जाता है, सूर्य को भी जहां से जाना जाता है, वो जानने वाला जो दृष्टा साक्षी है, उसका नाम है सूर्य नारायण, परमात्मा, शिव। इस तरह से जानना होगा। और परमात्मा का नाम है आनंद ही आनंद, केवल आनंद, वहां दुख नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है। संसार में तो जो सुख है वहां तो जहर भरा है। संसार के हर सुख में, संसार शरीर का हर सुख में अंदर जहर घुसा है, जहां से भविष्य में तनाव ही तनाव होता रहता है। लेकिन परमात्मा में जो सुख है उसमें तनिक भर दुख, जहर कभी भी नहीं है। इसलिए उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम शिव है। शिव ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है। इसलिए हम सबका स्वरूप केवल शिव है, क्योंकि शिव के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी का स्वरूप केवल शिव है। शिव का मतलब परम कल्याण, परम कल्याण का मतलब सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सत मतलब हरदम जो रहता है, चित मतलब जो अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है, और आनंद, आनंद ही आनंद, घन आनंद, अतिशय आनंद, परिपूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद। कहाँ? जहाँ बहुत जाजुल्यमान है, जाजुल्यमान, सूर्य का रोशनी से भी ज्यादा जाजुल्यमान। क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्र में कहा गया है जो परमात्मा का प्रकाश है वो बाहर भौतिक सूर्य के से 1000 गुना ज्यादा जाजुल्यमान है। ऐसा है हम लोगों का स्वरूप। इसलिए मानव का जो विशेषता है वास्तव में 3 है। वो है सदा रहने का इच्छा, सदा महान होने का इच्छा, और आनंदी आनंद में रहने का इच्छा। ये 3 विशेषता है, ये 3 चाहना है मानव का। वो मानव का चाहना पूरा होगा जब हम लोग परमात्मा की तरह रहेंगे। क्योंकि हम सबका, संसार का हम सबका असली स्वरूप केवल परमात्मा है, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। इन नेपलीज लैंग्वेज परमात्मा लाई साष्टांग दंडवत, दंडवत साष्टांग, किनेकी परमात्मा सब कुछ हो। नमः शिवाय को मतलब हो आफ्नो भन्ने केही छैन, सब कुछ हो भगवान शिव। नमः शिवाय, मेरो भन्नु केही छैन, सब कुछ हो भगवान शिव। इस प्रकारले शिव भनेको परम कल्याण,
परम कल्याण भनेको आनन्दै आनन्द, आफ्नै प्रकाश से सधैँ प्रकाशित, सधैँ अमरता, सधैँ विद्यमानता, शुद्ध अनुभव रूपले सधैँ विद्यमानता, स्वयं प्रकाश रूपले सधैँ विद्यमानता, सधैँ मौलिक आनन्द रूपले सधैँ अमरता, सच्चिदानन्द। यस्तो हो हामी सबैको अमर स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप। यो हो मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ। मानिसको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो परमात्माको रूपले रहिराख्नु। बाहिरी रूपमा आफ्नो कामकाज हिजो अस्ति जो थियो त्यो भोलि पर्सि पनि चलिरहन्छ आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म। त्यो प्रारब्धबाट निर्देशित हो, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। ध्यान विषयमा दिन्न भने पनि प्रारब्धले विषयमा ध्यान दिने गराउँछ, किनकि त्यही भोग्न आएको हो। आफ्नो आयु अवधिसम्म त्यो हुन्छ, त्यसमा घटिबढी हुँदैन। बाँकी रह्यो हाम्रो काम केवल परमात्मा रूपले, सच्चिदानन्द रूपले, परम आनन्द रूपले, स्वयं प्रकाश रूपले, शुद्ध अनुभव रूपले, सधैँका लागि अमर रूपले, अखण्ड रूपले लगातार रहिरहनु। अहिले यतिकै गरौँ। हरि ओम तत्सत।